ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال عرب حکومتوں نے اپنا خزانہ پانی کی طرح امریکہ کے لیے بہا دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئے اور مڈل ایسٹ کے 3 مسلم دیشوں نے اپنا پورا خزانہ امریکہ کے لیے کھول دیا۔ ہر ایک ملک نے دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کی کہ ہم امریکہ کے ساتھ زیادہ بڑی ڈیل کریں تو ہم زیادہ بڑی ڈیل کریں، لیکن جب یہ ساری ڈیل چل رہی تھی، معاہدے ہو رہے تھے، تو امید مسلم دنیا کو یہ تھی کہ شاید مسئلہ فلسطین پر بھی کوئی بات چیت ہوگی، فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کروانے کی جد و جہد بھی کی جائے گی، اور اسرائیل کا غزہ پٹی پر حملہ بند ہو، جنگ رک جائے، اس کے حوالے سے بھی کوئی گفتگو ہوگی۔ لیکن امریکی صدر ٹرمپ متحدہ عرب امارات، قطر اور سعودی عرب کا دورہ کر کے جا چکے ہیں، اور تینوں ملکوں کا جو خزانہ ہے وہ اپنے ساتھ لے جا چکے ہیں، لیکن مسئلہ فلسطین پر کوئی اچھی بات چیت نہیں ہو سکی۔ غزہ پر اسرائیل کا جو حملہ جاری ہے، اس کے حوالے سے بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، اور ان سب کے درمیان جو ایک تصویر اور ایک ویڈیو آئی جس نے پوری مسلم دنیا کو، عالم اسلام کو شرمسار کر دیا، وہ ہے یہ ویڈیو جس کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں اس کو الیالہ ڈانس کہا جاتا ہے، اور متحدہ عرب امارات میں جب پہنچتے ہیں امریکی صدر، تو یو ای کے صدر شیخ زائد بن نہیان نے ٹرمپ کے ساتھ جو ان کو استقبالیہ دیا، یا ان کے استقبال میں جو تیاری کی گئی، جو استقبال کے لیے سجاوٹیں کی گئی، تو وہاں یہ لڑکیاں اپنے بالوں کو لہرا رہی تھی۔ دوشیزہ نوخیز لڑکیاں سفید کپڑے میں ملبوس اور کھلے بال کے ساتھ اپنے بالوں کو لہرا رہی ہے۔ امریکی صدر اور یو ای کے صدر بیچ سے گزر رہے ہیں، اور اس ویڈیو نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو شرمسار کر دیا ہے کہ ایک ایسی سرزمین جہاں سے اسلام کا سورج طلوع ہوا، ایک ایسی سرزمین جہاں سے دنیا بھر میں اسلام کو فروغ ملا، ایک ایسی سرزمین جس کو دنیا بھر میں آئیڈیل کے طور پر دیکھا جاتا ہے، مسلمانوں کا مرکز کہا جاتا ہے، وہ ملک، وہ دیش بے حیائی میں، اسلام کے خلاف فحاشت کے فروغ میں اتنا آگے چلا جائے گا کہ وہاں اس طرح استقبال کیا جائے گا ایک امریکی صدر کا، اور واقعی پوری دنیا حیران ہو گئی۔ سعودی عرب نے بھی امریکی صدر کا استقبال کیا، قطر نے بھی امریکی صدر کا استقبال کیا، لیکن ان 2 دیشوں نے اس طرح کچھ بھی نہیں کیا۔ سعودی عرب میں جب امریکی صدر پہنچے تو وہاں جو ان کا استقبال ہوا، گھوڑوں کے ذریعے استقبال ہوا۔ سعودی عرب کا جو تلوار ہے، جو وہاں کا روایتی انداز ہے جنگ کا، اس کے ذریعے استقبال ہوا۔ قطر میں گئے تو وہاں بھی سفید گھوڑوں کے ذریعے، یا جو فوج تھی اس کے ہاتھوں میں تلوار، اور اس طرح استقبال ہوا۔ پوری ویڈیو یا تصویر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب متحدہ عرب امارات پہنچتے ہیں امریکی صدر، تو نہ وہاں پر گھوڑا، نہ وہاں پر تلوار، نہ وہاں پر آرمی، بلکہ یورپ کے ملکوں کی طرح یا کسی کلب کی طرح استقبال ہو رہا ہے، جہاں سفید بالوں میں ملبوس لڑکیاں ڈانس کر رہی ہے، بالوں کو لہرا رہی ہے۔ بی بی سی اردو نے اس پر ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی، جس میں بی بی سی کا کہنا یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات میں اس کو الیالہ ڈانس کہا جاتا ہے، اور پہلے سے وہاں یہ کلچر موجود ہے، یعنی شادی کے مواقع پر بھی وہاں اس طرح کے ڈانس ہوتے ہیں۔ جب قبائلی نظام تھا متحدہ عرب امارات میں تو اس طرح کے ڈانس ہوتے تھے، اور پہلے سے اس کا وجود موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پہلی مرتبہ پوری دنیا نے اس کو دیکھا، اس طرح کی ویڈیو سامنے آئی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ڈانس پہلی مرتبہ ہوا۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات تھی، لوگوں کو امید یہ تھی، پچھلی ویڈیو میں نے بھی بتایا تھا کہ جس طرح ٹرمپ کی شروع کی گفتگو میں فلسطین کا ذکر آیا تھا، غزہ پٹی کا ذکر آیا تھا، اور جس طرح غزہ پٹی کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ موقف سامنے آیا تھا کہ غزہ پٹی کے لوگوں کو بھی عزت کی زندگی جینے کا حق ہے، ان پر جو حملے ہو رہے ہیں وہ بند ہونے چاہیے۔ اسی طرح فلسطین کے تعلق سے جب امریکی صدر نے کہا تھا کہ فلسطین کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے، اسی طرح ٹرمپ نے اسرائیل جانے سے انکار کر دیا، اور مڈل ایسٹ کے دورے میں ٹرمپ نے اسرائیل کو شامل نہیں کیا۔ تو امید یہ ظاہر کی جا رہی تھی کہ ٹرمپ کا جو رویہ ہے، جو لب و لہجہ ہے، وہ سخت ہے، اور سعودی عرب کے حکمراں، متحدہ عرب امارات کے حکمراں، قطر کے حکمراں مسئلہ فلسطین پر بھی بات چیت کریں گے، اس مسئلے کو بھی حل کیا جائے گا، کچھ نہ کچھ فلسطینیوں کو راحت ملے گی، لیکن ایسا کچھ بھی سامنے نہیں آیا۔
बल्कि ट्रंप ने यहाँ भी अपने एजेंडा को नाफिज किया और सऊदी अरब से कहा कि वो इजराइल को एक स्टेट के तौर पर तस्लीम करे, क्योंकि अभी तक सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान सफारती रिश्ता बहाल नहीं हो सका है। सऊदी अरब ने इजराइल को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं कर रखा है। उसके अलावा अमेरिका ने सऊदी अरब से यह भी कहा कि वो इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। इब्राहिम अकॉर्ड क्या है, अगली किसी वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊँगा। मुत्तहिदा अरब इमारात पहले से इजराइल को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम कर चुका है। दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती रिश्ता बहाल है और यूएई पर पहले ये संगीन इल्ज़ाम भी लग चुका है कि यूएई ने इमदाद के नाम पर अपना एक काफ़िला भेजा था गज़ा पट्टी में, और दरअसल उसमें मोसाद के और इजराइल की दूसरा खुफिया एजेंसियों के जासूस शामिल थे और इन सब ने वहाँ जा कर के जासूसी की थी, गद्दारी की थी, और उसकी वजह से हमास के जो कुछ अहम रहनुमा थे या अल-क़स्साम ब्रिगेड के जो कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे, जो कमांडर थे, उन सब की लोकेशन लीक हो गई, उनके हवाले से इंफॉर्मेशन इजराइल को मिल गई और फिर उनमें से कई की शहादत भी हुई, जो अल-क़स्साम ब्रिगेड का और हमास का बहुत बड़ा नुकसान माना जाता है। हालांकि इस खबर को बड़े मीडिया हाउसेस ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, टेलीग्राम पर भी ये खबरें सामने आई थी और कई लोग मानते हैं कि यूएई से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। यूएई ने पहले भी इस तरह की कई सारी हरकतें की है और अब ये जो यूएई का मामला हुआ कि जिस तरह उसने इस्तकबाल किया, उससे दुनिया भर में एक बेचैनी फैल गई है। आइए ज़रा आपको ये बताते हैं कि दोनों यानी इन तीनों मुल्कों में कितना बड़ा समझौता हुआ है। तो सऊदी अरब का और अमेरिका का जो माहिदा हुआ है वो दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट कहा जाता है। डिफेंस के कई सारे माहिदे मुख्तलिफ ममालिक में होते रहते हैं। अमेरिका ज़्यादातर मुल्कों को हथियार बेचता है और उससे जो आमदनी आती है अमेरिकी अवाम उस पर ऐश करती है। अमेरिका की जो अवाम है सबसे ज़्यादा अपने आप को पूरी दुनिया में सुपर समझती है, लेकिन वो पैसे हथियार के नाम पर दुनिया के दूसरे मुल्कों से ही लिए जाते हैं। तो सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान इस मरतबा 142 बिलियन यूएसडी डॉलर का माहिदा हुआ है और अगर ये तमाम हथियार सऊदी अरब को मिल जाते हैं तो सऊदी अरब की जो फ़ौजी ताकत है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सऊदी अरब का जो असर व रसूख है दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन कहा यह भी जाता है कि हथियारों के इस्तेमाल करने वाले भी आपके पास होने चाहिए। हथियारों का कैसे इस्तेमाल करना है इसकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। कई मरतबा ये भी कहा जाता है कि अमेरिका हथियार तो दे देता है लेकिन उन हथियारों के इस्तेमाल करने की उमूमन परमिशन नहीं देता है। इसके अलावा सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान 600 अमेरिकी डॉलर के इन्वेस्टमेंट का माहिदा भी हुआ है, यानी सऊदी अरब अमेरिका में 600 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा, सरमाया करेगा। कतर और अमेरिका के दरमियान भी बहुत बड़ी डील हुई है और ये जो डील हुई है 1.2 ट्रिलियन डॉलर की डील हुई है और ये बहुत बड़ी डील मानी जाती है। इसमें 210 अमेरिकी जहाज़ जो है वो कतर ख़रीदेगा और ये बहुत बड़ी डील है। उसके अलावा डिफेंस के मामले में ये डील हुई है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी बहुत बड़ी डील की है और मुत्तहिदा अरब इमारात की जो डील है अमेरिका के साथ वो कतर से ज़्यादा आगे बढ़ी हुई है। यूएई ने 1.4 ट्रिलियन डॉलर की डील की है अमेरिका के साथ और ये जो इन्वेस्टमेंट है मुत्तहिदा अरब इमारात का अमेरिका में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में है, इसी तरह एयर स्पेस के सेक्टर में है, जहाज़ों की ख़रीदारी के सेक्टर में है। तो अरब ममालिक अपना पैसा अमेरिका को दे रहे हैं और अमेरिका की जो इकनॉमी है और अच्छी होगी, अमेरिका की जो आवाम है उनको और ज़्यादा जॉब मिलेगी, अमेरिका की जो पोजीशन है वो और अच्छी होगी। और इसी वजह से सोशल मीडिया पर इस तरह के कार्टून अब बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं जिसमें देखा जा रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक ऊँट पर बैठे हुए हैं, उनके हाथों में रुपया है, डॉलर है, सोना है और वो ले जा रहे हैं। इसी तरह का कार्टून ये बनाया गया जिसमें अरब ममालिक के हुक्मरां ये पैसा डॉलर या अपना रियाल अमेरिकी सदर को पेश कर रहे हैं और वो फ़ख्र के साथ ले रहे हैं। तो पैसा सऊदी का है, पैसा मुत्तहिदा अरब इमारात का है, पैसा यूएई का है और ये लोग तख्त में सजाकर पेश कर रहे हैं बस इस वजह से कि अमेरिका सुपर पावर है। और जो सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात रही वो ये कि मसले फ़लस्तीन के हल के लिए इन लोगों ने कोई बातचीत नहीं की। ऑफिशियली अभी तक कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है कि गज़ा पट्टी में सीज़ फायर के लिए, जंगबंदी के लिए भी कोई बातचीत हुई हो और इसका
का हल निकाला गया हो। अमेरिकी सदर ने शाम के सदर अहमद अशरा से भी मुलाकात की, उस पर भी दुनिया भर में हंगामा, क्योंकि मोहम्मद अल जुलानी, जिनका नया नाम अहमद अशरा है, इनको अमेरिका ने दुनिया का ख़तरनाक तरीन दहशतगर्द करार दिया था। $10 मिलियन का इनाम अहमद अशरा के सर पर अमेरिका ने रखा था। उसके बाद सऊदी अरब में उनसे अमेरिकी सदर ने मुलाकात की, बातचीत की और तारीफ़ की। बहादुर जंगजू है, बहुत मेहनती है, पुरकशिश नौजवान है। सऊदी अरब की अमेरिका के साथ जो डील हुई है, तो इस डील में क्या क्या शामिल है, क्या क्या मुआहदा शामिल है, उसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपको ख़बर का जो तर्जमा है पढ़कर बता रहा हूँ कि रियाद में सदर ट्रंप ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात की और $600 अरब की अमरीकी सरमायाकारी के माहदे पर दोनों ने दस्तखत किए। इसमें $142 अरब का दिफाई यानी डिफेंस का माहदा शामिल है, जिसके तहत सऊदी अरब को जदीद अमरीकी हथियार और तरबियत फराहम की जाएगी, यानी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा गूगल और रेकल, AMD और उबर जैसी अमरीकी कंपनियां सऊदी अरब में जदीद टेक्नोलॉजी के मंसूबों में $80 अरब की सरमायाकारी करेंगी। नासा और सऊदी स्पेस एजेंसी के दरमियान खलाई तहकीक में ताउन के माहदे भी तय पाए हैं। एक ख़बर यह भी आई थी कि अमेरिका ने सऊदी अरब को एटमी पावर बनने की परमिशन दे दी है, लेकिन ये कन्फर्म ख़बर नहीं है। सिर्फ इस तरह की खबरें आई थी कि आई है ख़बर, लेकिन जो ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है दोनों मुल्कों का, उसमें ये इंक्लूड नहीं है। कतर ने $1.2 ट्रिलियन का मुआहदा किया है। इसमें क्या क्या है वो ज़रा देख लीजिए। दोहा में सदर ट्रंप ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की और $1.2 ट्रिलियन के इकनॉमिक मुआहदे पर दस्तखत किए दोनों ने। इसमें कतर एयरवेज की जानिब से 200 अमेरिका के बने हुए बोइंग प्लेन्स की ख़रीदारी शामिल है, जो बोइंग की तारीख़ का सबसे बड़ा ऑर्डर है। यानी अब तक अगर किसी कंपनी के एक साथ इतने जहाज़ ख़रीदे गए हों तो उसमें सबसे बड़ा ऑर्डर है। इसके अलावा $243 अरब के डिफेंस और बिज़नेस माहदे भी इसमें पाए गए हैं, जिनमें ड्रोन या डिफेंस टेक्नोलॉजी की फराहमी शामिल है। इसके अलावा एक और ख़बर आप जानते हैं कि कतर के अमीर ने $418 मिलियन का जहाज़ भी अमेरिकी सदर को गिफ्ट किया है और अब अमेरिकी सदर उसको अपने एयरफोर्स 1 में शामिल कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात ने जो डील की वो उन दोनों से बड़ी हुई है। यूएई ने $1.4 ट्रिलियन की AI में सरमायाकारी की है। इसके अलावा तवानाई के माहदे में है। अबू धाबी में सदर ट्रंप ने यूएई के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की और $1.4 ट्रिलियन की अमरीकी आई शोबे में सरमायाकारी के माहदे पर दस्तखत किए दोनों ने। इसके अलावा $200 अरब के नए ट्रेड एग्रीमेंट तय पाए हैं, जिनमें $14 अरब का बोइंग और JE एयर स्पेस के साथ जहाज़ों की ख़रीदारी का माहदा भी शामिल है। यूएई ने अमरीकी तवानाई प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट को $70 अरब से बढ़ाकर $440 अरब करने का अहद भी किया है। तो बहुत बड़ी डील है, बहुत बड़ा माहदा है जो दोनों मुल्कों के दरमियान तय पाया है। लेकिन मैंने वही कहा कि सारा जो ख़जाना है अल्लाह ताला ने तेल की दौलत से नवाजा, अरब को गैस की दौलत से नवाजा, और ये पूरा का पूरा इन्होंने अमेरिका को उठाकर दे दिया है। और जब अमेरिका को इतना मिलेगा, पूरा ख़जाना उनके लिए खुल जाएगा, तो क्यों अमेरिकी सदर खुश नहीं होंगे? फिर क्यों वो इन हुक्मरानों की तारीफ़ नहीं करेंगे? लेकिन फ़लस्तीन में जो बच्चे हैं भूख से मर रहे हैं, प्यास की शिद्दत से मर रहे हैं, गज़ा पट्टी की जो सूरत हाल है लगातार ख़राब होती जा रही है। कल से सोशल मीडिया पर कुछ चैट्स की क्लिप भी वायरल हो रही है, जिसमें गज़ा पट्टी के रहने वाले कह रहे हैं कि अब हम आखिरी सांस ले रहे हैं, हमारे पास पानी पीने के लिए नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर अब हमारी मदद नहीं हुई, अगर अब इज़राइल के हमले को नहीं रोका गया, तो अब हमारा सर्वाइव करना मुश्किल है। 21 महीने मुसलसल हमला को हो चुके हैं, इसके बावजूद गज़ा पट्टी के बेयारो मददगार मुसलमान इन्हें नज़र नहीं आ सके। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखें।